So here we are talking about the types of connective tissue, and yes, in the last video we have discussed that in the types of connective tissue we are going to find three types depending upon the nature of matrix. What is matrix? How come the matrix is loose, dense, or specialized? That also we have discussed in the previous video. So today I am directly into the typification, and you know that what is the basis of this typification. We have also discussed all that yesterday. Okay, so loose connective tissue consists of cells and fibers loosely arranged in a semi-fluid ground substance. Here the semi-fluid ground substance is indicating the nature of matrix of the loose connective tissue. So loose connective tissue, we know what is matrix made up of. In that matrix, the number of cells and mainly the number of fibers would be less, and due to that the nature of the matrix is going to be semi-fluid like. Hence loose connective tissue is the name this connective tissue got. So loose connective tissue is of two types. The first one being areolar tissue. Okay, so here I have generally given you the characters or the functions which the areolar tissue does in our body. Then we will move to the characteristic cell of the areolar tissue, or inside this tissue what are the cells arranged to form a tissue, what are those cells, that we will discuss next. Okay, so here the general characteristics and functions have been discussed. You can see the first character, it is the very important question, entrance में बहुत आता है, it is the most widely distributed connective tissue in the animal body. Why? Because this is that connective tissue which is present underneath the skin. Whenever we talked about epithelial tissue, we said that there is epithelial tissue, underneath there is basement membrane, and basement membrane के नीचे हम लोगों ने connective tissue लिखा था. Connective tissue के नीचे होगा क्या? Muscle, muscle के नीचे बोला था क्या present है? Bone. This was the arrangement. तो ये जो connective tissue हम लोग बार बार लिख रहे हैं epithelial tissue के नीचे, what is this connective tissue? This connective tissue is none other than the areolar tissue. Hence we know that skin is the largest organ. So skin हमारे बॉडी में सबसे फैला हुआ ऑर्गन है. उसके नीचे जो टिश्यू होगा वो ऑब्वियसली क्या होगा? वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू होगा कि नहीं? ऑब्वियसली होगा. नेक्स्ट, it is present underneath the skin, forms support framework for epithelium. See, epithelial tissue का support framework. क्यों? क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू न्यूट्रिएंट देगा किसको? बेसमेंट मेम्ब्रेन को. वो देगा किसको? इसको. तो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कनेक्टिव टिश्यू epithelial टिश्यू को? Also joins skin to muscle. epithelial tissue को मसल के साथ जोड़ रहा है कौन? कनेक्टिव टिश्यू. बेसमेंट मेम्ब्रेन तो एक नॉन सेलुलर लेयर है, उसको हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते. लेकिन अगर कोई सेलुलर लेयर व्हिच इज जॉइनिंग द epithelial टिश्यू विद द मसल और मस्कुलर टिश्यू, बीच में कौन है? कनेक्टिव टिश्यू में. It feels, this is the function, it feels the space inside the organs, ठीक है, और in between the organs. वो जो मैंने कनेक्टिव टिश्यू का स्टार्टिंग में जो कुछ फंक्शन लिखा था, प्रिवेंट्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑर्गन. हार्ट और लंग्स के बीच में थोड़ा सा गैप है, उस गैप को फिल करेगा कौन? एरियोलर. सो दैट वो हार्ट क्या हो, एक ही जगह पे स्टक रहे, मूव ना करे. मोस्टली फाउंड अराउंड मसल्स, ब्लड वेसल एंड नर्व्स. सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. ओके, सपोज ये जो पॉइंट दिया है, फिल्स द स्पेस इन बिटवीन द ऑर्गन्स, तो समझ में आया है हार्ट और लंग्स के बीच में ये प्रेजेंट है. स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, ये क्या है? सपोज ये मान लेते हैं एक लंग्स है ना, तो हमको पता है लंग्स के अंदर कहीं ना कहीं इस तरीके का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा. ये जो स्ट्रक्चर मैंने लंग्स के अंदर बनाया है, ये क्या है? ये है एल्वियोलाई. आज इस एल्वियोलाई और ये जो लंग्स का जो ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम लोग बुलाते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन. जो प्लूरल मेम्ब्रेन बुलाते हैं, जो लंग्स का बाउंड्री को लाइनिंग करता है, ठीक है. ये प्लूरल मेम्ब्रेन और ये जो एल्वियोली का जो ये न्यूमोसाइट है, न्यूमोसाइट, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था. तो ये एल्वियोली का जो वाल है, इसको हम लोग न्यूमोसाइट बोलते हैं. न्यूमोसाइट एंड प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में थोड़ा सा जगह खाली है कि नहीं? उस जगह को कौन फिल अप कर देगा? एरियोलर फिल अप कर देगा. तो दिस इज स्पेसेस, फिलिंग अप द स्पेसेस इनसाइड द ऑर्गन. इन बिटवीन ऑर्गन ये हमारा लंग्स है, और यहाँ पे मान लेते हैं हमारा हार्ट है, ठीक है ना. तो ये हार्ट और ये लंग्स का बीच का जो गैप है, उस गैप में क्या प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है, जो हार्ट का डिस्प्लेसमेंट को प्रिवेंट करेगा, ठीक है. तो दीज आर जनरल कैरेक्टर एंड फंक्शन वी हैव डिस्कस्ड. नाउ वी विल मूव इनटू द कैरेक्टरिस्टिक सेल, क्या क्या है और उनका क्या क्या काम है एरियोलर टिश्यू में, ठीक है.
सो यहाँ पे देखो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कैसे फॉर्म होता है ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया। उसके मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, डिबॉक्स मेम्ब्रेन कैसे होता है, उस मैट्रिक्स में सेल्स कैसे आता है, कौन डिफरेंशिएट करता है, कौन अनडिफरेंशिएटेड रहता है, ये सब हम लोगों ने कल डिस्कस किया। सो अंडर दैट सर्कमस्टेंसेस हमको पता है कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में 4 टाइप ऑफ सेल रहेगा जो डिफरेंशिएटेड होके बनेगा एंड एक रहेगा अनडिफरेंशिएटेड सेल। तो अनडिफरेंशिएटेड सेल के बारे में मैं बाद में लिखूंगा, डिफरेंशिएटेड सेल्स के बारे में पहले लिख रहे हैं। पहला जो सेल है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज वुंड हीलिंग सेल। ठीक है, क्यों बोलते हैं वुंड हीलिंग सेल वो कैरेक्टर में पता चलेगा। फाइब्रोब्लास्ट सेल इज द लार्जेस्ट सेल फाउंड इन द मैट्रिक्स ऑफ एनी कनेक्टिव टिश्यू। हम लोग अभी एरियोलर पढ़ रहे हैं, एडिपोस पढ़ेंगे, टेंडोन, लिगामेंट, बोन, कार्टिलेज, आगे जाके बहुत सारा कनेक्टिव टिश्यू हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन सब कनेक्टिव टिश्यू में सबसे बड़ा सेल अगर किसी कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में पाया जाता है वो है फाइब्रोब्लास्ट सेल। एंड फाइब्रोब्लास्ट सेल के बारे में कल डिस्कस हुआ है, सब कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाएगा एक्सेप्ट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, फाइब्रोब्लास्ट सेल कैन ऑल्सो शो प्लूरोपोटेंसी, इसके बारे में कल डिस्कस हुआ था। सेमीटोटिपोटेंसी, कोई भी कनेक्टिव टिश्यू का डेरिवेटिव को बना सकता है। इक्विवेलेंट टू द अनडिफरेंशिएटेड मेसेनकाइमल सेल, जो काम अनडिफरेंशिएटेड मेसेनकाइमल सेल कर सकता है वो सेम काम फाइब्रोब्लास्ट सेल भी कर सकता है। मेन काम इसका है कि ये प्रोड्यूस करता है फाइबर। क्या क्या फाइबर, येलो फाइबर, व्हाइट फाइबर, कल पढ़ा है, एज वेल एज मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स का भी सिक्रेशन करने का एबिलिटी ये रखता है। ठीक है, जो एम सेल डिफरेंशिएट होने से पहले मैट्रिक्स जो बनाता है वो सेम मैट्रिक्स एफ सेल का फॉर्मेशन, फाइब्रोब्लास्ट सेल का फॉर्मेशन के बाद फाइब्रोब्लास्ट सेल भी जरूरत पड़ने से मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करके जो अंदर का स्पेस है उसको फिल अप कर सकता है या एक ऑप्टिमम लेवल पे रख सकता है। ठीक है, सो दिस इज फाइब्रोब्लास्ट सेल। नेक्स्ट जो सेल है उसका नाम है मैक्रोफेज और हिस्टियोसाइट्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए स्कैवेंजर सेल। क्यों? बिकॉज इट कैन इंजेस्ट सेल डेब्रिस, बैक्टीरिया, फॉरेन मैटर एंड बॉडी से ये सबको गायब कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, आज हमारे बॉडी में बोले एक बैक्टीरिया आया है ऐसा, ठीक है, तो वो बैक्टीरिया आने के वजह से मैक्रोफेज क्या करेगा, मैक्रोफेज ये पकड़ लो, मैक्रोफेज है ये, मैक्रोफेज ऐसे करके एक एमीबा शेप सेल है, ठीक है, जिसका कोई डेफिनेट शेप एंड साइज नहीं है। वो बैक्टीरिया के पास जाएगा, जाके अपना बॉडी का शेप को चेंज करेगा। ये मैक्रोफेज अपना बॉडी का शेप को चेंज करेगा, ऐसे करेगा करके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या देखेंगे, ये मैक्रोफेज ने इस बैक्टीरिया को अपने अंदर ले लिया है। ले लेने के बाद ये मैक्रोफेज क्या करता है, ये मैक्रोफेज, ठीक है, मैक्रोफेज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, आफ्टर एनगल्फिंग कुछ भी बैक्टीरिया हो, सेल डेब्रिस हो, फॉरेन मैटर हो, जिसको भी उसको रिमूव करना है, उसको एनगल्फ करने के बाद रिलीजेस पार्फोरिन्स, एक एंजाइम का रिलीज करता है अंदर के तरफ, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं, पार्फोरिन। वो पार्फोरिन क्या करता है, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उसमें इस तरीके का पोर्स क्रिएट करेगा। ठीक है, पार्फोरिन ब्रैकेट में लिख देता हूं, क्रिएट्स पोर्स इन द सेल वॉल ऑफ इंजेस्टेड मैटर। ठीक है, जो भी इंजेस्ट किया है, सेल डेब्रिस हो, बैक्टीरिया हो या फॉरेन मैटर हो, जो भी इंजेस्ट किया है, जो भी इसने अपने अंदर लिया है, ये पार्फोरिन उस चीज का सेल वॉल में क्या करेगा, छेद क्रिएट करेगा। ठीक है, ये जो छेद क्रिएट हुआ है इन पोर्स के थ्रू क्या होगा, ये जो मैक्रोफेज है, इस मैक्रोफेज का साइटोप्लाज्म जो होता है वो रश करेगा और रश करके बैक्टीरिया को अंदर से स्वेल अप करके इसको फोड़ देगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया विल बी ब्रोकन इनटू पीसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या होगा, इसके बाद हम लोग देखेंगे दैट साइटोप्लाज्म ऑफ मैक्रोफेज, ठीक है, रशेस इनसाइड एंड इंक्रीजेस टार्गोर प्रेशर। टार्गोर प्रेशर माने जो सेल के अंदर से जो एक प्रेशर बढ़ता है उसको हम लोग टार्गोर प्रेशर बुलाते हैं। ठीक है, तो इस मैक्रोफेज का साइटोप्लाज्म अगर अंदर रश किया तो बैक्टीरिया के अंदर साइटोप्लाज्म घुस के अंदर से एक प्रेशर जनरेट करेगा, उसको हम लोग टार्गोर प्रेशर बोल रहे हैं। ठीक है, ये टार्गोर प्रेशर के वजह से बैक्टीरिया क्या लिखेंगे, स्वेल्स अप एंड बर्स्ट इनटू क्या, पीसेस। छोटा छोटा पीसेस में ये जो बैक्टीरिया है ये फट जाएगा। ठीक है,
तो उसके बाद अगर हम लोग सिनेरियो देखें तो उसके बाद का सिनेरियो हम लोग को कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये मैक्रोफेज हुआ, उसके अंदर बैक्टीरिया का बस इस तरीके का टुकड़ा प्रेजेंट है, क्योंकि बार्स्ट होने के बाद ऐसा हो जाएगा, टुकड़ा प्रेजेंट होगा। ये जो फिनोमिनन तुम लोगों को मैंने अभी समझाया है, इस फिनोमिनन को हम लोग क्या बुलाते हैं? दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज फेगोसाइटोसिस। ये जो फिनोमिनन हम लोगों ने डिस्कस किया ये है फेगोसाइटोसिस, जो मैक्रोफेज हमारे बॉडी में करता है। तो एरियोलर टिश्यू के अंदर एक ऐसा भी सेल है जो फेगोसाइटोसिस करने का एबिलिटी रखता है। हेंस मैक्रोफेजेस आर आल्सो कॉल्ड एज फेगोसाइट्स। तो मैक्रोफेज का काफी सारा नाम है। इट कैन बी कॉल्ड एज हिस्टियोसाइट्स, फेगोसाइट्स, स्कैवेंजर सेल, दीज आर द अल्टरनेट नेम। ठीक है, फेगोसाइट्स, PHAGOCYTES, फेगोसाइट्स। ठीक है, सो ये है ये दो सेल जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में प्रेजेंट है और क्या काम करता है वो मैंने पढ़ा दिया है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टू सेल्स। So these are the remaining 3 cells which are found in the matrix of areolar connective tissue। दो का बारे में बात कर लिया, रिमेनिंग क्या क्या प्रेजेंट है। ठीक है, तो थर्ड जो सेल है जो डिफरेंशिएट होकर बनता है दैट इज मास्ट सेल। इट इज आल्सो कॉल्ड एज मास्टोसाइट्स। ठीक है, इट सीक्रेट्स 3 हार्मोन्स। इस सेल का काम है ये सिर्फ हार्मोन्स का सीक्रेशन करता है। ठीक है, सो इट सीक्रेट्स 3 हार्मोन्स। क्या क्या है वो 3 हार्मोन? एक का नाम है हिस्टामाइन, एक का नाम है हेपारिन, एक का नाम है सेरोटोनिन। कौन सा क्या करता है? देखो, हिस्टामाइन dilates the walls of blood vessel and produces inflammation। inflammation माने जलन। ठीक है, dilates the wall of blood vessel का माने ये कोई blood vessel हुआ, suppose this is a blood capillary। और इस blood capillary के अंदर बुले एक बैक्टीरिया कहीं से पहुंच गया है। ठीक है, और हम लोगों ने अभी थोड़ा देर पहले एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन के बारे में पढ़ा है कि ये एक ब्लड कैपिलरी, ये एक ब्लड कैपिलरी है ना। तो दो ब्लड कैपिलरी के बीच का जो गैप है, इस बीच के गैप में कौन प्रेजेंट रहेगा? इस बीच के गैप में प्रेजेंट रहेगा वो जो करता है पैकिंग, दैट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहेगा। अब सपोज इन दोनों ब्लड कैपिलरी में से किसी एक ब्लड कैपिलरी में बोले बैक्टीरिया आके एंटर कर गया है, तो प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया को सबसे पहले फील करेगा कौन? इस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर रहने वाला मास्ट सेल। ठीक है, वो सबसे पहले फील करेगा कि बॉडी में कोई बैक्टीरिया या कोई नॉन सेल्फ सेल, सेल्फ सेल माने खुद का, नॉन सेल्फ माने जो खुद का नहीं है, बैक्टीरिया खुद का तो नहीं हो सकता है, तो कोई एक नॉन सेल्फ सेल बॉडी में एंटर किया है, ये सबसे पहले पता लगता है मास्ट सेल को। और जैसे ही मास्ट सेल को पता लगेगा जो इस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर है, वो तुरंत रिलीज करेगा क्या? हिस्टामाइन। हिस्टामाइन दो काम करता है, एक यहाँ पे क्या करेगा? इन्फ्लेमेशन का प्रोडक्शन करेगा इस जगह पे। क्यों? बिकॉज दैट इन्फ्लेमेशन विल सर्व एज ए सिग्नल फॉर मैक्रोफेज एंड अदर इम्यूनिटी सेल्स टू कम हियर एंड अटैक दिस बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया इधर है, ठीक है, जैसे ही मास्ट सेल हिस्टामाइन रिलीज करेगा, वो हिस्टामाइन इस जगह पे क्या करेगा? बैक्टीरिया के आसपास एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, एक जलन प्रोड्यूस करेगा, जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन या जलन बेसिकली एक सिग्नल के जैसा सर्व करेगा। इट विल सर्व एज ए सिग्नल टू कॉल डिफरेंट WBC और WBC रिलेटेड एंटाइटी, क्योंकि हमारे बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है कौन? व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड सेल्स का कोई प्रोडक्ट, उनको बुलाया जाएगा कि भाई तुम लोग आओ, इस इन्फ्लेमेशन जहां पे हो रहा है यही वो जगह है जहां पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो WBC तुम लोग सब यहां पे आओ और आके इस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करो। ठीक है, दैट इज द फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन एंड डायलेशन ऑफ द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल। इसका मतलब क्या होगा? पकड़ लो, ये WBC को इन्फ्लेमेशन ने यहाँ बुलाया, ठीक है, हिस्टामाइन ने यहाँ पे इन्फ्लेमेशन किया, उस इन्फ्लेमेशन ने इन WBCs को यहाँ पे बुलाया। अब इस WBC को इस ब्लड कैपिलरी के अंदर भी तो घुसना है, कैसे घुसेगा? उसके लिए डायलेट्स द वॉल ऑफ ब्लड वेसल। ये ब्लड कैपिलरी का जो ये वॉल है, दिस वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट? This wall is made up of what? Squamous epithelium। सब चीज का कनेक्शन है। स्क्वामोस एपिथेलियम, तो हमको एंडोथेलियम बोला था मैंने। तो स्क्वामोस एपिथेलियम के सेल के बीच में क्या होता है? छोटा छोटा पोर रहता है। आज अगर मैं एक ब्लड कैपिलरी को अगर मैं डायलेट कर दूं, एक ब्लड कैपिलरी बोले नॉर्मल ऐसा है, ठीक है, तो उसका जो पोर होगा वो भी छोटा छोटा होगा, ऐसा होगा। नॉर्मल ब्लड वेसल ये है एक नॉर्मल ब्लड वेसल। इसको जब हिस्टामाइन डायलेट करेगा तो ये ब्लड वेसल कैसा हो जाएगा? ऐसा टाइप का हो जाएगा कि नहीं? फूल जाएगा। दैट इज ओनली कॉल्ड एज डायलेशन। जब ये ब्लड वेसल ऐसा होगा तो इसका जो पोर है वो पोर ऑब्वियसली क्या होगा? ठीक है, जो नॉर्मल साइज है उससे बड़ा हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि स्ट्रेचिंग हुआ है, डायलेशन हुआ है।
तब क्या होगा, WBC इन पोर्स के अंदर से धड़ाधड़ घुस सकता है और घुस के क्या करेगा, इस बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आएगा, बैक्टीरिया के साथ फाइटिंग शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो मास्ट सेल का जो हिस्टामाइन वाला सिक्रेशन है दैट हैज अ रोल टू प्ले विद द इम्यून सिस्टम, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला अभी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू दो ब्लड कैपिलरी के बीच में पैकिंग दे रहा होगा, कोई भी ब्लड कैपिलरी या एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के आसपास कोई भी नॉन सेल्फ सेल का प्रेजेंस विल ट्रिगर द मास्ट सेल टू रिलीज हिस्टामाइन। हिस्टामाइन दो काम करता है, इन्फ्लेमेशन टू कॉल WBC टू दैट पर्टिकुलर प्लेस सो दैट WBC आके नॉन सेल्फ सेल को रिमूव कर दे, मार दे, ठीक है, एंड इन्फ्लेमेशन, ठीक है, इन्फ्लेमेशन बुलाएगा, एंड डायलेशन WBC को अंदर घुसने में या उस जगह पे पहुंचने में मदद करेगा, ठीक है। बिकॉज डायलेशन जब होगा तो ये पोर्स बड़ा होगा जिसके थ्रू WBC बहुत फास्ट प्रोलिफरेट एंड एंटर कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हेपारिन। हेपारिन का काम देखो, इट चेक्स द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, कंप्लीटली अलग फंक्शन। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड ब्लड वेसल, हमारे ब्लड वेसल के अंदर ब्लड लिक्विड फॉर्म में कैसे घूम पाता है, ब्लड क्लॉट क्यों नहीं करता है ब्लड वेसल के अंदर, क्यों, क्योंकि ब्लड वेसल के अंदर ब्लड को लिक्विड स्टेट में रखता है एक प्रोटीन जिसका नाम है हेपारिन, व्हिच इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय लिवर बट इट कैन बी आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द मास्ट सेल। तीसरा है सेरोटोनिन, कंस्ट्रिक्ट्स ब्लड वेसल टू चेक ब्लीडिंग। कभी ऐसा होता है कि नहीं, हमारा कट जाता है, कट जाने से क्या होता है, थोड़ा देर बाद ब्लड ऊपर क्लॉट कर जाता है और अंदर का जो ब्लड वेसल कटा होगा, सपोज ये तुम्हारा स्किन है, ठीक है, और ये तुम्हारा स्किन है और ये स्किन के नीचे से जा रहा एक छोटा सा ब्लड कैपिलरी है। जब तुम्हारा कट ऐसे होगा तो ब्लड कैपिलरी से क्या होगा, ब्लड निकल के बाहर आएगा, तो बाहर स्किन में तो ब्लड क्लॉट हो जाता है, हमको पता है, लेकिन ये अंदर का जो ब्लड वेसल है, ये अंदर के ब्लड वेसल से ब्लड का लीकेज को प्रिवेंट करता है कौन, सेरोटोनिन, ठीक है। इस ब्लड कैपिलरी के आसपास अगर कोई एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है और उसको पता चल गया कि मेरे आसपास का ब्लड कैपिलरी कट गया है और उससे ब्लड लीकिंग हो रहा है, तब ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का मास्ट सेल सेरोटोनिन का रिलीज करेगा। वो सेरोटोनिन ये जो ब्लड कैपिलरी है उसको कंस्ट्रिक्ट कर देगा। समझ में आया ना, इसको मतलब कंस्ट्रिक्ट तो समझ में आता है, ठीक है, जो इसका कट हुआ है उस कट को नैरो कर देगा जिसके वजह से ब्लड का लीकेज या ब्लड का निकलना रुक जाए, स्टॉप हो जाए, ठीक है। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ दिस डिफरेंट हार्मोन्स। एक और सेल प्रेजेंट होता है किसके अंदर, इन द मैट्रिक्स ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, उसका नाम क्या है, प्लाज्मा सेल, आल्सो कॉल्ड एज कार्टविल सेल। क्यों, क्योंकि इस सेल का, ये पकड़ लो सेल है, इस सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस देखने में थोड़ा ऐसा टाइप का है, कार्टविल के जैसा होता है, इसलिए इसको कार्टविल सेल भी बोला जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज। नाउ व्हाट आर एंटीबॉडीज? एंटीबॉडीज का डिस्कशन हम लोग क्लास 12 में करेंगे। एंटीबॉडीज भी इम्यूनिटी से रिलेटेड है। अब एंटीबॉडीज जो है इसमें तुम लोग अभी बस इतना याद रखो दैट एंटीबॉडीज आर सम प्रोटीन्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू फाइट अगेंस्ट नॉन सेल्फ सेल, ठीक है। यहाँ पे मैं साइड में डेफिनेशन लिख देता हूं, प्रोटीन्स रिक्वायर्ड टू फाइट अगेंस्ट द नॉन सेल्फ सेल। अगर बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया, ठीक है, वायरस, ये सब अगर घुस जाए तो उनके साथ फाइट करने में ये एंटीबॉडी मदद करेगा। तो बेसिकली एंटीबॉडी कोई सेल नहीं है, ये एंटीबॉडी एक प्रोटीन है जो हम लोगों को, ठीक है, नॉन सेल्फ सेल के साथ फाइट करने में मदद करेगा। अच्छा, इसके अलावा और नंबर 5 है अनडिफरेंशिएटेड मेसेनकाइमल सेल। कल का डिस्कशन में हम लोगों ने किया है, ये प्लूरोपोटेंट सेल है, ये मैट्रिक्स प्रोड्यूस कर सकता है एज वेल एज अदर एंटाइटीज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का कोई भी सेल कहीं पे भी डैमेज हो जाए, ये अपने आप को उस सेल में कन्वर्ट करेगा, करके उसका जगह ले लेगा। सपोज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कोई मास्ट सेल मर गया, तो कोई भी कारण से वो मास्ट सेल मर गया, ये तुरंत अपने आप को मास्ट सेल में कन्वर्ट करेगा, करके मास्ट सेल के जैसा फंक्शनिंग करना शुरू कर देगा। इस एबिलिटी को हम लोग प्लूरोपोटेंट एबिलिटी बुलाते हैं, बिकॉज इस सेल के पास एबिलिटी है कि ये कनेक्टिव टिश्यू का ही कोई एंटाइटी बने। अगर आज ये मसल भी फॉर्म कर सकता है, न्यूरॉन भी फॉर्म कर सकता है, इपिथेलियल भी फॉर्म कर सकता है, तब ये टोटीपोटेंट होता। आज ये प्लूरोपोटेंट इसलिए है क्योंकि जरूरत पड़ने पे ये अपने आप को कन्वर्ट तो कर सकता है, लेकिन ओनली द डेरिवेटिव्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ओके, सो दिस इज वेयर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का डिस्कशन खत्म होता है, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द एडिपोस टिश्यू। सो यहाँ अभी हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं। एंड व्हेन वी गेट टू टॉक अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, देन you can see that what this connective tissue does. Similarly, मैंने पहले character and function से start किया है, then we will move inside.
एडिपोज टिश्यू क्या करता है? इट इज अ फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। हम लोग जो खाना खाते हैं वो खाना हमारे स्टोमक में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहां पे उसका ब्रेकडाउन होता है, फिर वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। जो खाना हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, जो खाना हमारे ब्लड में आता है, अगर उस खाने को हमारा बॉडी यूटिलाइज कर लेता है, ठीक है, वो खाना हमारे सेल्स तक पहुंचाया जाएगा, सेल अपने सर्वाइवल एंड फंक्शनिंग के लिए उस खाना को यूज करेगा। जो खाना हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, अगर वो पूरा का पूरा खाना हमारा सेल यूज कर लेता है तो इट इज वेरी गुड। लेकिन अगर हमारा बॉडी का सेल एब्जॉर्ब खाना को यूज नहीं कर पाता है कंप्लीटली, एब्जॉर्ब खाना में से कोई खाना हमारे ब्लड में बुले बच जाता है और सेल फील्स लाइक नो आई हैव हैड एनफ, मैं और एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, मेरा जितना रिक्वायरमेंट था वो पूरा हो गया, ऐसा अगर सेल फील कर जाए एंड ब्लड में अगर खाना रह जाए तो वो खाना तुरंत फैट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। कौन कन्वर्ट करता है? लीवर कन्वर्ट करता है। उस खाने को तुरंत फैट में कन्वर्ट किया जाता है और कन्वर्ट करके इस टिश्यू के अंदर डिपॉजिट करके स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। इसलिए अगर पूछा जाए हमारा प्राइमरी स्टोरेज फूड क्या है बॉडी का, वो है फैट। सेकेंडरी कौन है? ग्लाइकोजन। क्यों? क्योंकि लेकिन क्योंकि इसलिए है क्योंकि ग्लाइकोजन जो है वो ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में अगर हम लोग खाना खाना बंद कर दें, ठीक है, तो इफ ह्यूमन स्टॉप्स ईटिंग फॉर 10 to 12 डेज तो वो 10 to 12 डेज जिंदा रहेगा, उसके बाद मर जाएगा। उस 10 to 12 डेज में जो पहला डे होगा, उस पहला डे में बॉडी का जितना भी एनर्जी या न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करेगा कौन? ग्लाइकोजन विच इज स्टोर्ड इन लिवर, ग्लाइकोजन विच इज स्टोर्ड इन मसल, ठीक है। मसल वाला नहीं, मसल वाला मसल का ही रिक्वायरमेंट पूरा करेगा, लेकिन लिवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है वो पूरे बॉडी का न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को सिर्फ पहला 24 आवर्स के लिए देखेगा। पहला 24 आवर्स को छोड़ के बाकी जो 9 से 10 डेज एक इंसान जिंदा रहता है, उसमें फूड का प्रोवाइड बॉडी में करेगा कौन? फैट। If a person is fasting, if a person is not eating anything for 10 days, after 10 days that person will die. During this 10 days, the first day का nutritional requirement will be fulfilled by glycogen stored in the liver. Remaining 9 to 10 days, the nutritional requirement will be fulfilled by fat. So fat is a stored product of our body which is used in emergency. Okay. So now I hope you understood that how this fat is produced. Whenever we eat something, that food gets absorbed in our blood. The blood makes sure that body का सारा सेल तक ये खाना पहुंचे। बॉडी का सारा सेल खाना खाने के बाद भी अगर कोई खाना ब्लड में रह जाता है, उस एक्सेस खाना को तुरंत लिवर फैट में कन्वर्ट करता है और करके इस टिश्यू के अंदर स्टोर करके रख देता है। दिस टिश्यू इज लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे पाया जाएगा। ऑल्सो अराउंड द हार्ट, किडनीज, आईबॉल्स एक्सेट्रा, ठीक है। जहां जहां पे एरियोलर प्रेजेंट है, उस एरियोलर के साथ साथ थोड़ा थोड़ा एडिपोज भी सेम जगह में ही पाया जाएगा। स्किन के नीचे ऑर्गन्स के बीच में पैकिंग दे रहा है, ठीक है, उन ऑर्गन्स को एक स्टेबिलिटी दे रहा है। ये सब करते हुए एरियोलर को सपोर्ट करते हुए या एरियोलर के साथ एडिपोज को भी पाया जाता है। द मैट्रिक्स ऑफ एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू हैज 3 सेल्स। एडिपोसाइट्स जिसके अंदर फैट स्टोर होता है, फाइब्रोब्लास्ट जो फाइबर प्रोड्यूस करता है, अनडिफरेंशिएट मेसेनकाइमल सेल जो जरूरत पड़ने पे अपने आप को कोई भी सेल में कन्वर्ट कर सकता है। माने इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? मेसोडम ने बोला तुम किडनी के साइड में जाओ, जाके एडिपोज का फॉर्मेशन करो, वहां पे फैट भी स्टोर होगा और किडनी को एक पकड़ भी मिलेगा, एक कशनिंग भी मिलेगा, एक दो ऑर्गन के बीच का गैप भी फिलिंग होगा। ये सोच के मेसोडम ने एक मेसेनकाइमल सेल को बोला कि तुम किडनी के पीछे जाओ या आईबॉल के पीछे जाओ और वहां जाके एडिपोज टिश्यू का फॉर्मेशन करो। एम सेल आया आके डिवॉक्स मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन, ठीक है, याद करना पड़ेगा डिवॉक्स मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन। सेकंड, अंदर में मैट्रिक्स का फॉर्मेशन। थर्ड, वो एम सेल डिफरेंशिएट कर गया और कुछ कुछ डिफरेंशिएट नहीं किया। जो डिफरेंशिएट नहीं किया वो ये है और जो डिफरेंशिएट कर गया वो ये दोनों है। फिर फाइब्रोब्लास्ट ने क्या किया? उस मैट्रिक्स में फाइबर्स को ऐड किया एंड एडिपोसाइट्स ने अपने अंदर फैट का स्टोरेज को फैसिलिटेट किया। जब जब फैट आया तब एडिपोसाइट्स ने अपना दरवाजा खोल दिया, अंदर फैट स्टोरेज होने को दिया, ठीक है। अच्छा, फंक्शन, इट सर्व्स एज अ फैट रिजर्वोयर, ठीक है, इसके अंदर फैट स्टोर होगा, वो मैंने लिख दिया है। एक्सेस ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स एंड आर स्टोर्ड इनसाइड द एडिपोसाइट्स, ठीक है। वो एडिपोसाइट इज आल्सो कॉल्ड एज फैट स्टोरिंग सेल, तो उसके अंदर फैट स्टोरेज होता है। एडिपोसाइट का मैं डायग्राम करूंगा, उसमें और क्लियरली समझ में आएगा। शॉक एब्जॉर्बिंग कशन अराउंड आईबॉल्स एंड किडनीज, आईबॉल्स और किडनीज के पीछे या अराउंड आसपास प्रेजेंट है।
तो कभी तुम जोर से कूद दिए तो आंख निकल के तो नहीं आ जाएगा ना, वो आंख अंदर में ही रहेगा। वो जो शॉक मिलेगा आंख को, व्हेनेवर यू विल जंप, बॉडी को एक शॉक मिलेगा, तो उस शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा? ये एडिपोज टिश्यू करेगा। इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। जो लोग थोड़ा सा मोटा होते हैं उन लोगों को गर्मी ज्यादा लगता है, क्यों? बिकॉज फैट या फिर दिस टिश्यू बीइंग पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इट रिड्यूसेस हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, हीट को बॉडी से बाहर जाने नहीं देगा, बॉडी के अंदर ही पकड़ के रख लेगा, जिसके वजह से बॉडी इंसुलेटेड रहेगा। इसलिए मोटे लोगों को ज्यादा गर्म लगता है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हम लोगों ने कैरेक्टर एंड फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट हम लोग स्ट्रक्चर, टाइप्स, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। मेक नोट्स। तो यहाँ पे देखो मैंने मैट्रिक्स ऑफ एडिपोज टिश्यू को ड्रॉ किया है या करने का कोशिश किया है, जिससे मैं समझा सकूं कि अंदर क्या क्या सेल प्रेजेंट है। तो सिमिलरली देखो डिवॉक्स मेम्ब्रेन मैट्रिक्स, ठीक है, ये देखो अनडिफरेंशिएटेड एम सेल जो गोल गोल है, जो इस तरीके का इरेगुलर शेप्ड सेल है वो है फाइब्रोब्लास्ट सेल, और जो बड़ा बड़ा पोटैटो जैसा है वो है एडिपोसाइट्स। अंदर में एफ सेल अगर है तो वो कोलाजन फाइबर का भी प्रोड्यूस करेगा, एंड इस तरीके का देखो कोलाजन फाइबर बंडल, अनब्रांच्ड, ब्रांच्ड, ठीक है, दैट इज इलास्टिन फाइबर, ये सब का प्रेजेंस रहेगा। ठीक है, अब अगर मैं एक एडिपोसाइट्स को बाहर अच्छे से मैं ड्रॉ करूं तो एक एडिपोसाइट देखने में कुछ ऐसा होता है, जिसका ये वाला जगह में रहता है न्यूक्लियस, बाकी जगह जो है वो बाकी जगह में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है लेकिन रिड्यूस्ड। दिस इज सेल मेम्ब्रेन, रिड्यूस साइटोप्लाज्म, क्योंकि मैक्सिमम एरिया किसने ले लिया? फैट स्टोरिंग एरिया ने ले लिया, तो सेल ऑर्गेनेल्स को कमाना पड़ा। ठीक है, साइटोप्लाज्म को कमाना पड़ा इन ऑर्डर टू गिव मोर एंड मोर स्पेस टू द फैट स्टोरिंग एरिया। इसके अलावा इस सेल मेम्ब्रेन से निकल रहा है एक रिसेप्टर जिसका नाम है टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, एंड एक गेट है, ठीक है, जिसके थ्रू फैट का एंट्री एंड एग्जिट होता है, जिसका नाम है GLUT4। ठीक है, ये जो GLUT4 है, ये GLUT4 के थ्रू फैट आके तब घुसता है जब यहाँ पे आके बाइंड होता है कौन? इंसुलिन। ठीक है, जब टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर में आके इंसुलिन बाइंड करता है तो GLUT4 ओपन्स एंड इसके थ्रू फैट अंदर घुस के स्टोर होता है। जब टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर में आके ग्लूकागोन बोल के एक हार्मोन है, वो जब बाइंड होता है तो GLUT4 वापस खुलता है, लेकिन उसमें फैट एंट्री नहीं करता है, फैट एग्जिट करता है। ठीक है, तो GLUT4 इज अ गेट जिसके थ्रू फैट का एंट्री एंड एग्जिट होता है, विच इज रेगुलेटेड बाय, दैट मींस ओपनिंग ऑफ GLUT4 और एग्जिट एंड एंट्री ऑफ फैट इज रेगुलेटेड बाय टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। याद रखना, जब इस रिसेप्टर में इंसुलिन बाइंड करेगा तब GLUT4 खुलेगा, तब फैट अंदर घुस के स्टोर होगा। जब टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर में ग्लूकागोन बाइंड होगा तब भी GLUT4 खुलेगा, लेकिन तब फैट इसके अंदर से निकल के बाहर चला जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ एडिपोसाइट्स सेल या एडिपोज सेल लुक्स लाइक। ओके, नाउ वी विल मूव इनटू द टू टाइप्स ऑफ एडिपोज टिश्यू, एक है ब्राउन एडिपोज टिश्यू, एक है व्हाइट एडिपोज टिश्यू। तो कौन क्या है, किसके बॉडी में पाया जाता है और क्या फंक्शन करता है, डिफरेंस क्या है, वो देखेंगे। ये ड्रॉ करके रख दो। ठीक है, so this is the typification of adipose tissue that I was talking about. ठीक है, so here you can see one is white, one is brown. Okay, so what are their differences? First let's know the differences in comparison. A single large fat droplet in these cells surrounded by a small amount of cytoplasm means this is a adipocyte या adipose cell. Inside this cell we know nucleus, the cytoplasm part, fat storing area. So this fat storing area will have a large droplet of fat. ठीक है, this entire area will have a large droplet of fat like this, a single droplet of fat but a large droplet of fat, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो मैंने रेड में ड्रॉ किया है, दिस इज दैट लार्ज ड्रॉपलेट ऑफ फैट जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो सिंगल एंड लार्ज ड्रॉपलेट ऑफ फैट। ठीक है, ऐसे। ओके, इसमें क्या होगा, मेनी स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ फैट सस्पेंडेड इन अ कंसिडरेबली लार्जर अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। ये जो फैट स्टोरिंग एरिया है, इट्स फैट स्टोरिंग एरिया में हम लोग क्या देखेंगे, जो फैट ड्रॉपलेट है वो ऐसे प्रेजेंट होगा, स्मॉल फैट ड्रॉपलेट ऐसे प्रेजेंट होगा। तो फैट ड्रॉपलेट्स के बीच का जो एरिया है उसमें साइटोप्लाज्म रह सकता है, लेकिन इसमें जो फैट स्टोरिंग एरिया है वो एज ए होल पूरा एरिया एक वन लार्ज ड्रॉपलेट ले लेता है, तो साइटोप्लाज्म को रहने के लिए जगह नहीं है। इसमें फैट ड्रॉपलेट स्मॉल है, इसलिए साइटोप्लाज्म को रहने के लिए जगह है। ठीक है, तो इसलिए कंसिडरेबली ज्यादा साइटोप्लाज्म है। फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया, जगह ही नहीं है, फैट ड्रॉपलेट ने सारा जगह ले लिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरी फ्यू। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया इज हाई इन नंबर क्योंकि साइटोप्लाज्म को जगह है। सिमिलरली सेल ऑर्गेनेल्स के लिए भी जगह है,
तो मेनी माइटोकॉन्ड्रिया। ब्राउन एडिपोज टिश्यू का ब्राउन कलरेशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन कंटेनिंग साइटोक्रोम पिगमेंट, कुछ आयरन कंटेनिंग, ठीक है, साइटोक्रोम, साइटो माने साइटोप्लाज्म, क्रोम माने कलर, माने साइटोप्लाज्म को कलर करने वाला कुछ पिगमेंट है जो आयरन कंटेनिंग है, ठीक है ना, तो उसके वजह से इसका कलर ब्राउन आता है। इसमें ऐसा कोई पिगमेंटेशन नहीं है, ठीक है, एब्सेंट ब्रैकेट में पिगमेंटेशन या पिगमेंटेशन इज एब्सेंट ऐसे लिख सकते हो। तो इसका कोई कलर नहीं है, इसलिए ये कलरलेस है, व्हाइट है, ठीक है। फैट का कलर ऐसे भी व्हाइट होता है, ठीक है, तो इसमें कोई पिगमेंट नहीं है तो ये व्हाइट कलर देता है। इसमें पिगमेंट है इसलिए ये व्हाइट नहीं देता है, ब्राउन देता है। अगर पिगमेंट नहीं होता तो ये भी व्हाइट कलर देता है, ठीक है, बिकॉज फैट का कलर व्हाइट होता है। दिस एडिपोज टिश्यू कैन बी यूज एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ फूड। वो जो मैंने बोला कि खाना निकल के जाता है, आता है, ग्लूट4 के थ्रू आके स्टोर होता है और जरूरत पड़ने पे ग्लूकागोन आके बाइंड करेगा टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर पे, ग्लूट4 खुल जाएगा, फैट निकल के चला जाएगा। वो फैट जो निकल के जा रहा है दैट इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ फूड। तो व्हाइट एडिपोज टिश्यू या व्हाइट एडिपोसाइट्स जो है उनके अंदर का जो फैट होता है, लार्ज ड्रॉपलेट ऑफ फैट, उसको हम लोग फूड के सब्स्टिट्यूट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी बोला 10 दिन तक अगर कोई खाना नहीं खा रहा है तो पहला दिन ग्लाइकोजन काम चलाएगा एंड सेकेंड दिन से लेके एकदम लास्ट जब तक जिंदा रहेगा तब तक फैट बॉडी का न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरा करेगा। ये वो फैट है जो सब्स्टिट्यूट ऑफ फूड के हिसाब से यूज किया जाता है, निकाल के इसको बॉडी यूज कर सकता है। लेकिन ब्राउन फैट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ फूड सब्स्टिट्यूट। इसको निकाल के बॉडी मतलब अगर क्या बोलते हैं इसको, उपवास अगर चल रहा है, मतलब खाना उना अगर नहीं खा रहा है, स्टारवेशन अगर कोई कर रहा है, तो अगर उसके बॉडी में ब्राउन फैट है तो ब्राउन फैट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ फूड अंडर स्टारवेशन, बट व्हाइट फैट कैन बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ फूड ड्यूरिंग स्टारवेशन। बट दिस प्रोवाइड्स लेस इंसुलेशन, दिस प्रोवाइड्स मोर इंसुलेशन, ठीक है। ये जिसके बॉडी में होगा उसके बॉडी में गर्मी बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस इज जस्ट अ कंसेप्ट ऑफ समर एंड विंटर। हम लोग समर में क्या करते हैं, एक ऐसा कपड़ा पहनते हैं, जस्ट कॉटन शर्ट पहनते हैं, ठीक है। लेकिन विंटर में क्या करते हैं, एक के ऊपर एक पहनते हैं कि नहीं। उससे क्या होता है, वन क्लोथ एंड दूसरा जो क्लोथ होगा उसके ऊपर जो पहनेंगे, दोनों के बीच में एक एयर केविटी होगा। वो एयर केविटी बॉडी के हीट को ट्रैप कर लेता है, उसको बाहर जाने नहीं देता है। दिस इज द सेम कंसेप्ट ऑफ इग्लू। बर्फ के जगह में बर्फ से घर बनाते हैं, क्यों? क्योंकि बर्फ में एयर कैविटीज होता है जो अंदर के इग्लू के अंदर का हीट को बाहर एस्केप करने नहीं देता है, तो इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे भी सेम, ठीक है ना। ये फैट का जो ड्रॉपलेट इनके बीच बीच में गैप है वो क्या करेगा, हीट को बाहर निकलने नहीं देगा, हीट को बॉडी में पकड़ के रख देगा, बॉडी को इंसुलेटेड रखेगा, ठीक है। अब इन दोनों में अगर एग्जाम्पल मुझे पूछो तो ये ऐसा है, जो न्यूबॉर्न बेबीज होता है, जैसे कि हम लोग भी जब पहले जन्म लेंगे तो न्यूबॉर्न बेबीज के बॉडी में ब्राउन एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। लेकिन ये ब्राउन एडिपोज टिश्यू ग्रेजुअली जब 2 साल 3 साल 4 साल होगा, ये ग्रेजुअली व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज हमारे बॉडी में अगर पूछो कि कौन सा सर एडिपोज टिश्यू है, वो ये है, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है। लेकिन एक जमाने में मतलब जब हम लोग छोटे थे तब हमारे बॉडी में ये हुआ करता था, ये भी हुआ करता था, ये भी हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे हमारा एज हुआ, ऑल द ब्राउन एडिपोज टिश्यू कन्वर्टेड इनटू व्हाइट एंड करेंटली इन आवर बॉडी वी हैव ऑल व्हाइट। बट इन अ न्यूबॉर्न बेबी लाइक जिसका 6 महीना है, 1 साल है, उनके बॉडी में ब्राउन भी पाया जाएगा, व्हाइट भी पाया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे उसका एज बढ़ते जाएगा, ब्राउन सारा व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए यू विल सी व्हेन अ न्यूबॉर्न बेबी 6 महीने का बच्चा को जब नहलाते हैं ठंडे के दिन में, दे डू नॉट शिवर बिकॉज दे हैव एक्सट्रीमली हाई इंसुलेशन इन देयर बॉडी, ठीक है, जिसके वजह से उनको ठंडा नहीं लगता है। तुम लोग बोल सकते हो सर ठंडा नहीं लगता है तो बच्चों, इतना छोटा बच्चों को सर्दी खांसी का बीमारी कैसे होता है? दैट इज बिकॉज देयर इम्यूनिटी इज वीक। उनके बॉडी में बैक्टीरिया, वायरस ये सब जाता है, जिसके वजह से उनको डिजीजेस होता है, बट उनको ठंडा लग के डिजीजेस नहीं होता है। बिकॉज जो 6 महीना न्यूबॉर्न बेबी, 2 महीना 1 साल का जो बच्चा होता है, उनके बॉडी में ब्राउन फैट रहता है, जिसके वजह से दे हैव अ वेरी हाई इंसुलेशन एंड दे डू नॉट शिवर। इवन व्हेन यू विल टेक देम फॉर बाथ इन अ विंटर डेज, दे वॉन्ट शिवर बिकॉज देयर बॉडी इज हाईली इंसुलेटेड। ओके, सो अगर मुझे एग्जाम्पल पूछो तो एग्जाम्पल में मैं लिखूंगा नियोनेट्स। ये कहाँ पाया जाता है? नियोनेट्स इज न्यूली बॉर्न मैमल्स को हम लोग नियोनेट्स बुलाते हैं। तो नियोनेट्स के बॉडी में ये पाया जाता है। प्लस कुछ हाइबरनेटिंग एनिमल्स लाइक पोलर बियर वगैरह, उनमें भी ये एडाप्टेशन है कि वो लोग
जब छोटा रहेगा, नियोनेट रहेगा, तब उनके बॉडी में ब्राउन रहेगा, लेकिन जब वो लोग एडल्ट होगा तब भी वो लोग अपने बॉडी में ब्राउन को रिटेन कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो लोग एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन में रहता है, वहां पे उनको ब्राउन का जरूरत है मोर देन व्हाइट। और हम लोग जो लोग टेम्परेट रीजन में रहते हैं, हम लोगों में ब्राउन होने से हम लोग और गर्मी में पागल हो जाएंगे। इसलिए अलोंग द इवोल्यूशन हमारा जो ब्राउन है वो कंप्लीटली व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज ब्राउन का जरूरत हम लोग को थोड़ा बड़ा होने के बाद और नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हाइबरनेटिंग एनिमल्स को होता है तो वो लोग रिटेन कर सकता है। इसमें अगर हम लोग लिखें तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं एडल्ट मैमल्स। एडल्ट मैमल्स जो होता है मोस्टली उन लोगों में व्हाइट एडिपोज टिश्यू देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग लूज कनेक्टिव टिश्यू का डिस्कशन खत्म कर दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आई विल स्टार्ट विद डेंस एंड वी विल डिस्कस ऑल्सो। डेंस छोटा है तो आई थिंक कार्टिलेज वगैरह भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में आराम से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। फिर बोन बहुत बड़ा टॉपिक है, बोन बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ तक अच्छे से नोट्स बना लो सब लोग। थैंक यू।